السلام علیکم دوستو پچھلے ولاگ میں ہم نے چین کے زوال اور عروج کی اس داستان کو پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ آج پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک بات پہ ہم تمام لوگ بڑے ششدر ہیں کہ آخر کون سی ایسی وجوہات تھی کہ حفیم جو میں کھائی ہوئی قوم جو نشے میں اوندھی پڑی ہوئی ہو، اور وہ ایسا کون سا انقلاب برپا ہوا، چین کو یہ عروج حاصل ہوا جس کو دیکھ کر آنکھیں ششدر ہو کے رہ جاتی ہیں، ورطہ حیرت میں ہم گم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے جو پہلا ولاگ تھا جس کا میں نے اس پلے لسٹ کے اوپر ذکر بھی ہے، میں نے اس کا مینشن کیا ہوا ہے، تو اس کا پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب ذکر ہے کہ یورپ کے تاجر جو اشیاء مثلا سلک تھا، چینی کے برتن خریدتے تھے تو اس کی ادائیگی انہیں چاندی کے سکوں میں کرنی ہوتی تھی، جس سے کمپنی کے منافع میں خاطر خواہ کمی واقع ہو رہی تھی۔ اس کا حل یورپین تاجروں نے نکالا کہ اشیاء کے بدلے اشیاء سے تبادلہ کیا جائے، لیکن ایسی اشیاء جس کی چین کی منڈی میں آسانی سے کھپت ہو، لیکن اس کا ملنا خاصا دشوار تھا۔ اس لیے انہوں نے انتہائی صفاقانہ سوچ کا مظاہرہ کیا، کیونکہ کیپٹلزم میں مطمع نظر فقط منافع کا حصول پناہ حصول ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کے سامنے کسی اخلاقی اور انسانی اقدار کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس لیے یورپین جو تاجر تھے انہوں نے بھی ایسا ہی راستہ اپنایا۔ یورپی تاجروں نے منافع کے حصول کے کا ذریعہ حفیم کو ہی بنایا۔ یہ وہ دور تھا جب چین کے لوگ اگرچہ زیادہ خوشحال تو نہ تھے، لیکن صحت مندانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں حفیم جیسی نشے کی علت نہیں پڑی تھی، اگرچہ حکومت منگ کو اس سے واقف تھی، کیونکہ ایک بار پرتگالی تاجروں نے حفیم کو بطور تحفہ دربار میں پیش کیا۔ پھر اس طرح ترکی سے بھی حفیم لائی گئی تھی جو دربار شاہی میں لائی گئی، لیکن اس کا مقصد تجارتی ہرگز نہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان بنگال میں اپنے مضبوط اور منحوس پنجے گاڑ چکی تھی۔ بنگال کی زمین اس مقصد کے لیے کارآمد نظر آئی، اور وہاں گندم اور دوسری اشیاء کی کاشتکاری کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے جبری طور پر بنگالی کسانوں سے پوپ لگائی گئی، اور پوپ کے پھول سے اسے حفیم میں بدلا گیا، اور بہار میں اس کالی بلا کو گولے کی شکل میں پیکنگ کی گئی۔ یہ جو آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ یہ اس ذریعے ان کو پیک کی جاتی تھا، پھر اسے وہاں سے چین سمگل کر دیا جاتا تھا۔ چین میں انہیں وہاں کچھ مقامی ایجنٹس تیار کر لیے تھے، اور انہی کے ذریعے عام لوگوں تک حفیم پہنچنا شروع ہو گئی۔ چینی عوام اس کے عادی بنتے گئے، حتیٰ کہ اشرافیہ میں یہ ایک مقبول نشہ بن گیا۔ ان سے چینی سلک اور برتن خریدے جانے لگے۔ اس طرح حکومت کی آمدن ختم ہوتی چلی گئی، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے بے پناہ منافع حاصل کیا۔ چین کی حکومت اس قدر مالی بحران کا شکار ہوئی کہ ان کے پاس عوام کی فلاح و بہبود تو کجا فوج کی تنخواہ کی ادائیگی کی بھی رقم پس انداز نہ تھی۔ چونکہ کمپنی نے حفیم کی وجہ سے چاندی کے سکوں میں ادائیگی بند کر دی تھی، تو چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ کسانوں کے پاس حکومتی مالیات کی ادائیگی کے لیے چاندی کے سکے نہ تھے، اس لیے وہاں انہوں نے یہ کیا کہ اپنی زمینیں فروخت کرنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ کسان طبقے میں بے چینی پھیل گئی، انہوں نے ہر طرف سے بغاوتیں کرنا شروع کر دیں، جن بغاوتوں کو کچلنے کے لیے حکومت پر مالی بوجھ بڑھ گیا۔ اگرچہ منچور شاہی خاندان اور افسر شاہی نے یورپی تاجروں کی حفیم کی تجارت کی حوصلہ افزائی ہرگز نہ کی تھی، اور نہ ہی اس کی بارہا درخواستوں کے بیجنگ میں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دی تھی، لیکن ابتدا میں حفیم کی تجارت کو ختم کرنے کا عملی مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب حکومت کو اس مکروہ اور گندے کاروبار کی تباہیوں کا علم ہوا اور پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا، یوں اسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ انگریز کمپنی کی اس حفیم تجارت نے چین کی حکومت کا معاشی طور پر بھرکس نکال دیا۔ 1820 سے 1830 تک کے عرصے میں فقط 10 سال میں چین کی حکومت بدترین اقتصادی بحرانوں میں گھر چکی تھی۔ چین کی بڑی آبادی تیزی سے حفیم کی کار ہو چکی تھی، عادی ہو چکی تھی۔ 1 کروڑ سے زیادہ چینی اس لعنت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کسان ہو یا مزدور، محنت کش ہو یا کوئی اور، اپنی آدھے دن کی کمائی اس حفیم کی خریداری میں وہ جھونک دیتا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہمارے تکلیف کے اور جسم میں دردیں ان کی جسم سے اٹھتی تھی، ان کی دھاڑیں نکلتی تھی۔
इससे चीन की वो जिंदा कौम जिनको अपनी रवायात पे बड़ा फ़ख्र था, जराइम के करना शुरू हो गए, जराइम करके पैसा कमाना शुरू हो गए। उस दौर में जहाँ जिस्म फरोशी का कोई तसव्वुर नहीं था, जिस्म फरोशी का मकरू धंधा भी चल पड़ा वहाँ। उनमें बीमारियाँ फैलती गईं, सेहत तबाह होती गई, वो सेहतें तबाह होने से वो बेकार काम बन के रह गई। और दूसरी तरफ हुकूमत को बजट के खसारे होने लगे, यहाँ तक कि तनख्वाहों के पैसे भी ना बचे। सरकारी अहदेदारों को वक्त पर तनख्वाहें न मिलती थीं, इसलिए वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए और बदउनवानियाँ करने लगे। करप्शन फैल गई, चीनी हुनरमंद कारीगर और ताजर मायूस हो गए, चीन में इंतशार पैदा हो गया। चीन का शहंशाह जब हालात को कंट्रोल करने की ठान ली एक दिन, तो उसने कैंटोन्स के गवर्नर को अफीम की स्मगलिंग को रोकने के लिए सख्त तादीबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस पर पहले तो गवर्नर ने तकरीबन 2000 मकामी चीनी एजेंट्स को गिरफ्तार किया और उनको मुख्तसर से ट्रायल के बाद सरेआम फांसियाँ देने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रोज़ाना की बुनियादों पर था, ताकि खौफ और हरास पैदा हो सके उन तमाम लोगों को जो इस बकरू धंधे में, गंदे धंधे में मुलव्वस थे। शहंशाह चीन ने लिन ज़ियाओशो को एक कमीशन का जो है सरबराह मुकर्रर किया। उसने इंडिया कंपनी से बराह रास्त तसादम से ग्रेज करते हुए, डिप्लोमेसी से काम लेते हुए मलका विक्टोरिया को ख़त लिखा और कहा, हफीम का इस्तेमाल इंग्लैंड में तो ममनू है, तो फिर क्या वजह है इसके ताजर चीन में इसको स्मगल करके लोगों की सेहतों को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इसलिए कि मलका की हैसियत से उसका फ़र्ज़ है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस गंदे कारोबार से रोक ले। लेकिन मलका बरतानिया और हुकूमत बरतानिया इस वक्त बरतानिया के कॉरपोरेट तबके के मुकम्मल तसल्लुत में थे, उनके कब्ज़े में थे, इसलिए उन्होंने इस ख़त को जवाब देना मुनासिब न समझा। अब की बार लिन ज़ियाओशो ने हफीम की स्मगलिंग को रोकने का हुक्म जारी किया, क्योंकि गैर मुल्की ताजर 3 दिनों में हफीम का स्टॉक उन्होंने कहा कि वो हवाले कर दें उनके, वगरना उनके खिलाफ तंबीह की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यहाँ तक कि उनको सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। अब की बार लिन ज़ियाओशो ने कंपनी के अफसरान ने उसे महज, क्योंकि उस धमकी को महज एक धमकी ही समझा और अपनी धंधा को जारी रखा। इस पर तीसरे दिन उनके गोदाम पर हुकूमत ने रेड की, जहाँ से 75 टन हफीम बरामद हुई और 2 को हिरासत में फ़ौरन ले लिया गया और सज़ाए मौत दे दी गई। हुकूमत चीन ने तहैया कर लिया था कि इस ऑपरेशन क्लीनअप को हर मुमकिन हद तक जारी रखा जाएगा, तो उन्हें एक और गोदाम से 25,000 संदूक मिले, जिनमें 13,000 टन हफीम गोले की शक्ल में मिले, जिनकी कीमत उस दौर में 2.5 मिलियन पाउंड से ज़्यादा थी। चीन की हुकूमत उसे तलब करने में 500 मजदूरों को उसने हायर किया और उससे काम करवाया। उन्होंने इस हफीम के ज़ख़ीरे को समंदर में फेंक दिया। चीन की हुकूमत के इस इंतहाई इक़दाम के ख़िलाफ़ इंग्लैंड के कॉर्पोरेट सेक्टर में कोहराम मच गया। उस वक्त इंग्लैंड का वज़ीर आज़म था पामरस्टोन्स, जिसे इस तरह की जाहिरियत के लिए दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया था। अंग्रेज़ ताजरों ने उस पर दबाव डाला कि उनके साथ होने वाले सलूक और नुकसान का मुदावा किया जाए। अंग्रेज़ अवाम में एक बार फिर एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई कि चीन की हुकूमत ने बरतानिया की बेइज्जती की है, इसलिए उनसे बदला लिया जाए। अंग्रेज़ कौम का अखलाक और इक़्तिदार का यह डबल स्टैंडर्ड ही था जिसने चीन पर जंग करने की ठान ली, जिसे किसी तरह पर जस्टिफाई अब नहीं किया जा सकता। बहरहाल वज़ीर आज़म पामरस्टोन्स ने बरतानवी बहरिया को कैंटोन्स बंदरगाह के मुहासरे का हुक्म दे दिया और बरतानवी हुकूमत ने चीन की हुकूमत से 4 मुतालबात किए, जिनमें अफीम का वो ज़ख़ीरा जिसे चीनी हुक्काम ने ज़ाय किया था उसका मुआवजा का मुतालबा किया, वो दिया जाए, और दूसरा कि बरतानवी ताजरों के साथ जो ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया गया उस पर हुकूमत माफ़ी मांगे। तीसरा, चीनी बंदरगाहें बरतानवी कंपनी के लिए खोल दी जाए। चौथा, बरतानिया को इजाज़त दी जाए कि वह अपना सफारत खाना बीजिंग में कायम कर ले। हालात इस कदर अंधोनाक थे कि महज चीन अपना दफा करने से कासिर हो चुका था। यही वजह है कि उन्होंने मसालहत के शर्मनाक रास्ते का इंतखाब किया और गवर्नर लिन ज़ियाओशो को बरतरफ कर दिया ताकि बरतानवी ताजर किसी हद तक राज़ी हो सके। बरतानवी बहरिया ने एक और मुतालबा फिर कर दिया कि हांगकांग की बंदरगाह भी बरतानिया के हवाले कर दी जाए। चीन हर लिहाज से कमज़ोर और लाग़र हो चुका था। बरतानिया की सब भी मुतालबात तस्लीम करता चला गया। उन्हें बरतानिया को $6 मिलियन का मुआवजा भी अदा करना पड़ा, जो इसने माशियत को ख़त्म ही कर दिया। चीन की जो चांदी की शक्ल में था और कैफ्टन्स की
कैंटन्स की बंदरगाह को भी ताजरों के लिए खोल दिया। चीन के बादशाह मंचू को ज़िल्लत आमेज शराइत का इल्म था, इसलिए उसने उस माहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इस पर बरतानवी बहरिया ने चीन के कई किलों और कैंटन्स की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। चीन के हज़ारों फौजियों को अपनी हिरासत में ले लिया और $6 मिलियन का तावान लेकर उन्हें रिहाई मिली। चीन मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आ रहा था, लिहाजा उसने इस माहदे की शराइत पर दस्तखत कर दिए। बरतानिया ने इस माहदे के साथ कुछ और मुतालबात फिर तस्लीम करवाए, जिसमें बरतानवी बाशिंदों पर चीनी कवानीन के तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ये भी शर्त रखी गई, और उन्हें तमाम बंदरगाहों पर जाने की इजाज़त होगी, ये भी शर्त रखी गई। इस जाहिरियत में दीगर मगरबी ममालिक उन भेड़ियों को देखकर कैसे पीछे रह सकते थे, तो फिर राल टपकाते फ्रांस और अमेरिका भी आगे बढ़ा और बरतानिया को अमरीकी हुकूमत की हमायत भी मिल गई। बल्कि अमेरिका ने उस दौर में कहा कि चीन की तहजीब जदीद अंदाज पर उस्तवार करने के लिए बरतानिया का कब्ज़ा ज़रूरी है। बरतानिया और फ्रांस की फ़ौज ने मिलकर चीन के मुख्तलिफ़ शहरों और बंदरगाहों पर हमले करना शुरू कर दिए और फिर वो बीजिंग में दाखिल हो गए। उन्होंने समर पैलेस को नज़र आतिश कर दिया, दोबारा बीजिंग से अपना मुआहदा पर दस्तखत करवाए, जिसमें फ्रांस ने भी जंग का मुआवजा तलब कर लिया। हालांकि इससे पहले फ्रांस $6 मिलियन का मुतालबा कर रहा था, लेकिन बीजिंग पर कब्जा करने के बाद उसने अपना मुआवजा बढ़ा दिया, उसे 16,000 मिलियन तक ले पहुंचा दिया। मगरबी ममालिक का यह सफाकाना चेहरा खुलकर सामने आया, जिसने इखलाकी इक़दार की धज्जियाँ बिखेर दी। ज़बरदस्ती से तावान लेकर चीन को इक़्तिसादी तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हफीम की स्मगलिंग ने बरतानवी ताजरों को दौलतमंद कर दिया, मगर चीन के करोड़ों लोग भूख और अफलास के हाथों मौत का शिकार होते चले गए। ये सारा मामला मगरब की खुद गर्जी पर इस्तवार था। मुहज़्ज़ब कहलाने वाले ये मगरबी कौमें हलाकू और चंगेज़ को शर्मा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ चीन के एक ने भी एक सबक सीख लिया था। वो क्या था? चीन ने ये सबक सीखा कि तन्हाई का शिकार होकर, दुनिया से अलग थलग होकर, टेक्नोलॉजी और नित नए इजादात से लाताल्लुक़ होकर अपनी बका कायम रखना नामुमकिन है। चीन की तारीख़ का ये पहलू अगरचे तल्ख़ और संगीन है और दिलखराश है, लेकिन हम सब के लिए एक सबक भी है कि अगले व्लॉग में हम अब चीन के 1860 के हालात का जायज़ा लेंगे, जिनमें सबसे बड़ा वाक़या किसानों की बगावत। बहुत शुक्रिया, अपनी आरा से नवाजिएगा। बहुत